So I'm repeating. Dash refers to distinctiveness and variation among people's characteristics. Okay. And behavior pattern. इसका आंसर बताओ. There are 4 options: assessment, situationism, individual differences, and intelligence. Aditi? Individual differences. ठीक है. Good. Great. तो ये आपको याद हो रहा है. Next. Dash is that situation and circumstances in which one is placed. आपकी आवाज आवाज आपकी नहीं आई. कोई नहीं, 1-2 सेकंड्स में हो जाती है, फिर ठीक हो जाती है. Dash is that situation and circumstances in which one is placed influence that one's behavior. आंसर ऑप्शंस हैं. अच्छा पहले ही आते हैं आपको बिना उसके. चलो छवि तुम बताओ. सिचुएशन. गुड. सिचुएशनिज्म. ठीक है. राइट. थर्ड है dash refers to the measurement of psychological attributes of individuals and their evaluation, often using multiple methods in terms of certain standard of comparisons. Aditi? Assessment. Good. Dash uses systematic testing procedure to evaluate abilities, behavior and personal qualities of individuals. हम एक बार रिपीट करना. Dash uses systematic testing procedures to evaluate abilities, behavior and personal qualities of individuals. Chavi? Psychological assessment. Good. दोनों के 2-2 नंबर. ठीक है. Next. Dash is the global capacity to understand the world, think rationally and use available resources effectively when faced with challenges. ये तो सबको अच्छे से मैंने याद कराई थी. चलो अदिति. Intelligence. Very good. ठीक है. Next है. एक सेकेंड. बस ऐसे ही हमने करने हैं प्रैक्टिस. Dash refers to an individual's underlying potential for acquiring skills. Chavi? Aptitude. Good. Very nice. Dash is an individual's performance for engaging in one or more specific activities relative to others. Aditi? Interest. Very nice. Dash refers to relatively enduring characteristics of a person that make her or him distinct from others. Chavi? Personality. Repeat. Personality. Very nice. Very good. Dash. I'm so happy. Seriously. देख तो नहीं रहे ना? नहीं मैम नहीं. Good. ठीक है. मेरे को पता लगे सामने कोई स्लाइड शो चल रहा हो. कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगा के पीडीएफ लगा रखी हो सामने चल रही हो. Dash are enduring beliefs about an ideal mode of behavior. Aditi? Values. Very good. Very nice. Dash is an objective and standardized measures of an individual's mental or behavioral characteristics. Chavi? Psychological test. Very nice. Dash involves seeking information from a person on one-to-one basis. Aditi? Interview. तो सेम टाइम चल रहे हो तुम दोनों. 10 हो गए. 5 तेरे. ठीक. Dash is an in-depth study of the individual in terms of his or her psychological attributes, psychological history in the context of his or her psychological and physical environment. Chavi? Case study. Next. Dash involves employing systematic, organized and objective procedures to record behavioral phenomena occurring naturally in real time. Aditi? Observation. रियल टाइम. अब आपको ये बात समझ में आ गई कि हर डेफिनेशन का ना एक कीवर्ड होता है जिससे वो हमें बता देता है कि वो क्या है. बस वही है. जैसे इसमें रियल टाइम है. रियल टाइम ऑब्जर्वेशन. ठीक है. पीछे वाले में हिस्ट्री है. हिस्ट्री एक ऐसा वर्ड है वो केस स्टडी में ही जाएगा. ठीक है. उससे पहले आ गया 1-to-1. उससे पहले आ गया 1-to-1.
दैट इज इंटरव्यू, ठीक है। और बिलीव्स जहां आ गए वो आपके वैल्यूज हो जाते हैं, वैल्यूज हो गए। ठीक है। तो ऐसे ही हर डेफिनेशन को सफल करके तुम्हें याद होते चला जाएगा, राइट। नेक्स्ट है डैश इज द मेथड in which a person provides factual information about herself, himself, and or opinion, beliefs that he or she holds. छवि, सेल्फ रिपोर्ट। तो इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ग्रे मतलब क्लियर है। इसमें वो बता देगा कि मेरे को ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, मुझे ब्लैक पसंद है, व्हाइट पसंद है, मेरी हाइट क्या है, वो फैक्ट्स जो बताएगा। अब आते हैं Dash explains intelligence as the power of perceiving, learning, understanding, and knowing. कॉग्निटिव। मैंने छवि, ठीक है छवि, राइट। ऑक्सफोर्ड क्या है डिक्शनरी की इसमें? डेफिनेशन है बेटा इंटेलिजेंस की, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अच्छा, की। ओके 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 ओके। Dash explains intelligence as the power of perceiving. इसमें 4 ही words हैं, perceiving, learning, understanding and knowing, ठीक है। इसमें ये 4 ही words हैं, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ही दिए हैं, नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है Dash defined intelligence as the ability to judge well, understand well and reason well. इसमें well 3 well आए और ये 3 well किसने दिए? अदिति। अल्फ्रेड बेनेट। Very good, Alfred Bennett. Fine. Next है Dash defines intelligence as the global and aggregate capacity of an individual to think rationally. छवि। Very good. Rational. तो इसमें कौन सा याद करोगे? इसमें एग्रीगेट वर्ड याद कर सकते हो, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है Dash suggested that अभी तुम इसी से हिसाब लगा लोगे कि तो अगर ये 10 नंबर का चैप्टर है तो तुम उसमें कहाँ पे फिट होते हो, इसी ये सब कुछ पूरा इसमें आ जाएगा मोटा मोटा। Dash suggested that an intelligent individual not only adapts to the environment but also actively modifies or shapes it. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग और हार्वर्ड, ये तो हार्वर्ड गार्डनर और Yes. स्टर्नबर्ग। हाँ हावर्ड गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग, इन दोनों ने मिलकर ये डेफिनेशन दी कि जो अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई भी कर सके वो इंटेलिजेंट पर्सन। तो इसमें बेसिकली एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने वाला वर्ड है। नेक्स्ट है Dash considers intelligence as an aggregate of abilities. कौन सा मेथड है ये? सिंपल है छवि। साइकोमेट्रिक अप्रोच। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है Dash theory states that intelligence consists of 7 primary abilities. कौन सी वाली थ्योरी है जिसमें 7 प्राइमरी? ये लुइस थर्स्टन ने दी थी ये वाली थ्योरी। इसका नाम बताओ। और नाम भूल गई मैं। बेटा इसी में ही छुपा हुआ है जो मैंने सेंटेंस बोला है। छवि बताओ। अच्छा मैम, ये 7 बताने हैं? 7 नहीं बताने, इसका नाम बताना है थ्योरी का। नाम बताना है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जिसमें 7 है। चलो ठीक है, अब बताओ 7 के 7 बताओ, चलो ट्राई करो। 7 क्या है मैम? वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, स्पेशल म्यूजिकल एबिलिटी जो होती है, हाउ मच एबिलिटीज आई टोल्ड यू, वर्ड फ्लुएंसी। ठीक है, कर लोगे आप लोग इसको, राइट। नेक्स्ट है डैश इज द एसोसिएटिव लर्निंग इन विच आउटपुट इज मोर और लेस सिमिलर टू द इनपुट। ये मैं ऑप्शन दे रही हूँ, लेवल 2, 1 फैक्टरी, लेवल 1, एस फैक्टर और लेवल 1। लेवल 1 ठीक है। किसने दी थी ये थ्योरी? आर्थर जेनसन। ठीक है। लेवल 2 में क्या होता है? ये तो लेवल 1 है। लेवल 2 में होती है हायर कंपोनेंट होता है उसके अंदर जो इफेक्टिव होता है ज्यादा और इनपुट से ज्यादा मैच नहीं करता और आउटपुट ज्यादा इफेक्टिव होता है उसका। वेरी गुड।
नेक्स्ट है डैश क्लासिफाइज इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स अमंग 3 डायमेंशन, ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स। ये इस थ्योरी का नाम बताना है। और ऑफ कोर्स किसने दी थी वो तो बताना ही है, मैं तो नहीं बता रही। ऑप्शन दे दो। हाँ मैम, ऐसे नाम बताओ किसने बनाई है। ये एक सेकंड, जेपी गुलफोर्ड, राइट। अब हाँ, इसकी थ्योरी का नाम बताओ। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, ठीक है, इंटेलेक्ट। हमारे दिमाग का कैसा स्ट्रक्चर है। तो इसमें 3 चीजें आती हैं आपकी, ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स। कंटेंट एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट है डैश रेफर्स टू अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग्स, मोटिव्स एंड डिजायर्स। ऑप्शंस दे रही हूँ, स्पेशल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक। मैम वन ओन फीलिंग या अदर फीलिंग? वंस ओन, वंस ओन, ओन इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है डैश व्यूज इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू अडॉप्ट, टू शेप एंड सेलेक्ट एनवायरनमेंट टू अकॉम्प्लिश one's goals and those of one's society and culture. कॉन्टेक्सचुअल ये वाला है। हाँ, कॉन्टेक्सचुअल कंपोनेंट। अच्छा, ठीक है। तो इसका आंसर तो इसमें दी, ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी एक सेकंड, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी ये। वेरी गुड, वेरी नाइस। एक थ्योरी। गुड 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 अदिति, वेरी नाइस। नेक्स्ट है स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस सेंस इज गुड एग्जांपल ऑफ डैश। गुड एग्जांपल है मतलब क्या? स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस सेंस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ डैश इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, कॉन्टेक्सचुअली वो बंदा चेंज हो जाता है ना। कॉन्टेक्सचुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं ना उसको। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वैसे कह सकते हैं, वो आईपीए थ्योरी है, ठीक है। कॉन्टेक्सचुअल का मतलब होता है जैसा देश वैसा बीज, मतलब जैसा बिजनेस करना हो ना तो वैसे ही बन जाना चाहिए, क्योंकि आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो बिजनेस सेंस वाले स्मार्ट लोग इसमें आते हैं, ठीक है। गुड है। नेक्स्ट है आपका डैश प्रोसेसेस ऑपरेट ऑन अ नॉलेज बेस developed either formally or informally from the environment। दोबारा बोल रही हूँ, ये भी वही है, आपकी एक थ्योरी है, आपको बताना है कौन सी वाली थ्योरी है। डैश प्रोसेसेस ऑपरेट ऑन अ नॉलेज बेस developed either formally or informally from the environment। मैं ऑप्शंस देती हूँ, ए पास मॉडल, बी कॉन्टेक्चुअल, सी कंपोनेंशियल, डी एक्सपीरियंशियल। एक बार लास्ट वाला बोलना। कॉन्टेक्सचुअल, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और पास मॉडल। आंसर क्या है? पास मॉडल है, पास मॉडल। राइट। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, ये प्रैक्टिकल बेसिस पे है ना। आईपी की ये भी थ्योरी है, तो फॉर्मल इन्फॉर्मली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट से ही हमारा दिमाग चलता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो मैंने अभी आपको टेस्ट में भी पूछा था, CAS, CAS इज डेवलप्ड फॉर व्हिच एज ग्रुप? For which age group? 5 to 18 years old. ठीक है, ओके। डैश व्यूज MR मतलब means mentally retarded as significantly sub-average general intellectual functioning existing concurrently with deficits in adaptive behavior and manifested during the developmental period। ये किसने दी है definition? AAMD, फुल फॉर्म AAMD की अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी। वेरी नाइस, वेरी गुड। और मेरा मन करा मैं तेरे को ना चॉकलेट दूं। गुड। पता क्या आपके 10 नंबर पक्के हो गए, मतलब यू आर कॉन्फिडेंट। मतलब ये याद रखना है, अभी मार्च तक लेके जाना है सारा, अभी मई हुआ है, अभी मतलब 10 महीने यहाँ पे अपने यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट है डैश refers to a person's capacity
to be independent and deal effectively with one's environment. तो ये क्या है, कौन सा बिहेवियर है? ऑप्शंस दे रही हूँ मैं. Maladaptive behavior, ill adaptive behavior, sub adaptive behavior, adaptive behavior. Adaptive behavior. Adaptive behavior. वेरी गुड, वेरी नाइस. तो ये जो है अगर कोई ऐसा करता है तो बंदा नॉर्मल है, अगर कोई नहीं कर पाता है तो फिर उसकी में वो डेफिशिएंसी वाली प्रॉब्लम है. नेक्स्ट है डैश इज एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी shown in superior performances in a wide variety of areas. बताओ अदिति. Giftedness. राइट, वो वाइड वैरायटी आ गया ना, अगर उसको मैं कहते हैं नैरो Yes. तो वो टैलेंट हो जाता है. टैलेंट हो जाता. ठीक है. According to school teacher, giftedness is dash comma dash comma dash. छवि. Ma'am, punctuality, honesty, and और मैम हाई कमिटमेंट, हाई एबिलिटी और हाई एबिलिटी, हाई कमिटमेंट और हाई क्रिएटिविटी. वेरी गुड, हाई क्रिएटिविटी. ठीक है, हाई कमिटमेंट, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई एबिलिटी, ये तीनों ही किसके किन बच्चों के अंदर होते हैं? जो कि ये गिफ्टेडनेस वाले के अंदर होता है, टीचर्स के पर्सपेक्टिव से. वेरी गुड, वेरी नाइस. फिर है डैश प्रिपेयर्ड अ मेंटल मेजरमेंट हैंडबुक लिस्टिंग आउट 103 टेस्ट्स. यानी कि वो जो हमने उसमें किया था ना इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट में, ये टेस्ट किसने बनाया जिसके अंदर 103 टेस्ट है? मैं ऑप्शन दे रही हूँ, गेस कर लेना. उदय शंकर, एस जलोला, भाटिया, लॉन्ग एंड मेहता. मैम वापस से ऑप्शन क्या होगा? उदय शंकर, बी एस जलोटा, सी भाटिया, डी लॉन्ग एंड मेहता. मैम भाटिया. नहीं मैम, भाटिया नहीं है, उसने बैटरी टेस्ट बनाए थे ना. बैटरी की वो आंसर है लॉन्ग एंड मेहता. लॉन्ग ना, लॉन्ग एंड मेहता. चलो बस आप लोग अभी इसी का ही आंसर नहीं कर पाए, बाकी तो सब आपने कर लिए मिलजुल के. नेक्स्ट है who said culture provides, ये हमने लास्ट क्लास में किया था. Who said culture provides a social context in which people live, grow and understand the world around them. MC जोशी, बेल्शर, वेगोत्स्की, प्रमिला पाठक. वेगोत्स्की. मुझे लग रहा था, मैंने कहा मैंने बता दी ना तो ये हिंट ले लेंगे. लास्ट टाइम ने कल्चर पे वेगोत्स्की के साथ ही पढ़ा है. ठीक है. क्रिएटिविटी को टर्मन के साथ पढ़ा था लास्ट क्लास. फिर है डैश इज अ कलेक्टिव सिस्टम ऑफ कस्टम्स, बिलीफ, एटीट्यूड एंड अचीवमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर. इसको क्या बोलते हैं? डैश इज अ कलेक्टिव सिस्टम ऑफ custom, belief, attitude and culture. achievement. Very good, culture. Next है intelligence in the Indian tradition is external, integral intelligence. Intelligence. ठीक है. इसके ऑप्शन से external, spiritual, internal और contextual. That is integral. Next है self regulation and self monitoring of emotions. Honesty. Emotional. ठीक है. EQ. Emotional. EQ. राइट. ठीक है. नेक्स्ट है कमिटमेंट. वैसे पूरा पढ़ देती हूँ क्योंकि मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, 3 बच्चे एब्सेंट हैं आज, मैं बोल देती हूँ पूरा. सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ इमोशंस, ऑनेस्टी, पोलाइटनेस, गुड कंडक्ट एंड सेल्फ इवेल्युएशन इज कॉल्ड इमोशनल. ठीक है. क्वेश्चन नेक्स्ट है 36 बोल रही हूँ मैं. कमिटमेंट, परसिस्टेंस, पेशेंस, हार्ड वर्क, विजिलेंस एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इज व्हाट? Entrepreneurial component. ये उसके इंडियन इंटेलिजेंस में जो 4 थे ना, वो चौथे वाला. हाँ. इसमें कमिटमेंट है, परसिस्टेंस है, पेशेंस है, हार्ड वर्क एंड विजिलेंस एंड गोल डायरेक्शन और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. Next, according to Dash, the ability to monitor one's own and others' emotions, to discriminate among them,
and to use the information to guide one's thinking and action. ये किसने बोली है definition? साल्वे और एक तो साल्वे और Salvo and Mayer. Mayer. ठीक है, एक ही definition थी EQ की, proper emotional intelligence की एक ही थी, वो meaning था. ठीक है. Next है dash most commonly used battery test to determine aptitude of the person. DAT. It has how many sets? 7 या 8 है ना? 8 है. वही सबसेट्स हैं वो जो हम चेक कर रहे हैं इंटेलिजेंस. ठीक है, Yes, राइट. Who said? अब बताना ये किसने बोला? The same person can be creative as well as intelligent, but it is not necessary that intelligent ones must be creative. किसने बोली ये लाइन? मैम वो राइटर का नाम बता दो. ठीक है, ठीक है. अदिति. ओके, ऑप्शन दे दो एक बार. ऑप्शन दे दी तो बता दो कि मैं तो ऐसे पूछ रही हूँ. एक ही पढ़ा हमने. क्रिएटिविटी के साथ किसने बोला? क्रिएटिव. वेगोट्स्की. वो कल्चर है. अच्छा क्रिएटिविटी का टर्म हो गया. टर्मन ही नहीं है. क्रिएटिविटी के साथ टर्मन है. ठीक है, और कल्चर के साथ वेगोट्स्की है. बस दो ही है लास्ट में. चलो अब लास्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप क्रिएटिव टेस्ट. उसमें मैं ऑप्शंस दे रही हूँ और बड़ी सारी दे रही हूँ, सुनना. ए गुलफोर्ड, टॉरेंस, पासी. बी गुलफोर्ड, टर्मन, पासी. सी वॉलेश, टर्मन, गुलफोर्ड. डी बेदी, टर्मन, पासी. हमें लिखना पड़ेगा, ये तो बहुत सारे हैं. चलो एक दो वैसे ही बता दो. कोई पता है क्रिएटिव टेस्ट किसने बनाया? एक तो पासी ने दिया था. ठीक है, पासी को मैंने सबमिट डाला. टर्मन तो है ही. टर्मन ने क्रिएटिव टेस्ट नहीं बनाया. अरे ओके हाँ. और एक दो नाम और बोलना. गुलफोर्ड, वॉलेश. आंसर ऑप्शन ए था. गुलफोर्ड, टॉरेंस एंड पासी. इन तीनों ने क्रिएटिव टेस्ट बनाया. ठीक है, तो ये 40 हमने अभी डेफिनेशंस किए. तो आई एम हैप्पी कि आप लोगों को एटलीस्ट ये जो इसका जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, कौन सा, डेफिनेशंस का और मीनिंग्स का, वो आपको याद है. ठीक है, अब है एक्सप्लेनेशन करने का. मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अब एक्सप्लेन आप कर सकते. एक्सप्लेन में सब्जेक्टिव आंसर्स मैंने आपको लिखवाए हैं सारे पैराग्राफ के पॉइंट की. तो वो सब्जेक्टिव को आप बना सकते हो. प्रॉब्लम आती है इसमें, जिसमें आप बहुत हेयरलाइन डिफरेंस पे चूक जाते हो. यार ये बात किसने बोली थी या ये डेफिनेशन क्या थी. तो अगर ऑब्जेक्टिव पे पकड़ आ जाती है तो सब्जेक्टिव को लिखना आप लोगों के लिए अब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मेजर क्वेश्चन कौन से बनेंगे. तो पहला मेजर क्वेश्चन देखो, पहला जो मेजर क्वेश्चन बनेगा, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं. सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे, वो 5 हो गए. ठीक है, कौन कौन से डिवाइस कर लेना, बताओ जल्दी बोलो. इंटरेस्ट, वैल्यूज, पर्सनालिटी, और इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी भी है. और एप्टीट्यूड. पर्सनालिटी, वैल्यू. ठीक है, अब इनके मेथड बताओ. इनको 5 तरीके से कैसे जज करते हैं? कौन से 5 तरीके हैं जिनसे? साइकोलॉजिकल टेस्ट मैं बताऊंगी. अदिति अच्छा ठीक है, मैं बोलूंगी. तू बता. साइकोलॉजिकल टेस्ट, केस स्टडी, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रिपोर्ट. वेरी गुड, परफेक्ट. ठीक है, इसके बाद हमने इंटेलिजेंस की सारी डेफिनेशंस कवर कर ली. ठीक है, और इसमें जो मेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन पीए एंड आईपीए. एक क्वेश्चन हो गया, आता है, इजी है. फिर हमने पीए की 5 थ्योरीज करी. 5 के नाम बताओ. पहली वाली थ्योरी कौन सी थी? बिन्ने ने दी थी, यूनिफैक्टर थ्योरी. दूसरी किसने दी थी? 2 फैक्टर थ्योरी, एस फैक्टर, जी फैक्टर. चार्ल्स पियर्स ने. तीसरी और लुइस थर्स्टन. लेवल 1, लेवल 2. उसके बाद हायरार्की, प्राइमरी हायरार्की मॉडल आर्थर जेंसन ने ये वाली. ठीक है, और जेपी गुलफोर्ड ने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, ऑपरेशन कंटेंट. ये 5 हो गई. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आईपीए की 3 थ्योरी पे. पहली आपकी है ट्रायर की, जो स्टर्नबर्ग ने दी है, राइट, फाइन. फिर पास मॉडल ने, जो जेपी दास और नेलगिरी ने दी है, पास मॉडल. ठीक है, और तीसरी है आपकी हावर्ड गार्डनर की,
जिसमें उसने 8 टाइप्स बताए इंटेलिजेंस के, टाइप्स ठीक है। उसमें 8 है, हायरार्की में 3 है, तीनों के नाम बताओ, कॉन्टेक्चुअल, एक्सपीरियंशियल एंड कॉन्टेक्चुअल, कॉम्पोनेंशियल, कॉम्पोनेंशियल एंड एक्सपीरियंस। कॉम्पोनेंशियल में भी 3 है आपके, एक्सपेरिमेंशियल। कॉम्पोनेंट में भी 3 हाँ, पड़े हैं आपके, नॉलेज एक्विजिशन, बेटा और हॉट कंपोनेंट्स और परफॉर्मेंस कंपोनेंट। ठीक है। तो इसके अंदर 3 हो गए। और पास मॉडल में आपको, पास मॉडल के भी 3 है, बोलो। पहला है अराउजल, प्लानिंग, अराउजल, अटेंशन, साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस एंड स्टिमुलस, सक्सेसिव स्टिमुलस एंड सक्सेस। इसको जिसने बनाया उसने CAS बनाया, ठीक है, राइट। तो ये आपकी थ्योरीज होगी। अब हम सीधा चलते हैं इंटेलिजेंस पे। तो इंटेलिजेंस के बारे में हमने पढ़ा, एक पिकअप किया हमने, फिर हमने इंटेलिजेंस की थ्योरीज पढ़ी थी, सॉरी इसके डेफिनेशन थ्योरीज हो गई, फिर इसके क्या नाम है IQ पढ़ा, IQ, देन वी रेड अबाउट द IQ, ठीक है। तो IQ इंटेलिजेंस को हमने डिस्कस किया, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड नर्चर, जो आपने डिफाइन किया। नेचर के अंदर आपको चारों पांचों कॉम्बिनेशन बताने हैं, फ्रेटर्नल ट्विन्स, आइडेंटिकल ट्विन्स, फ्रेटर्नल ब्रदर्स, सिबलिंग्स, ये आपको बताने हैं। ये किसमें बताने हैं आपको? नर्चर में। नेचर में आपको क्या बताना है? नेचर के अंदर हमें बताना है कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड का होता है, हाँ, जो चाइल्ड का होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपका इसमें कैटेगरी आती है, इसमें आपकी IQ। उसके बाद सॉरी इंटेलिजेंस में रोल ऑफ नेचर एंड नर्चर। फिर अब आते हैं IQ। व्हाट इज IQ? ये बिने ने बनाया था, ठीक है, और इसको बिने ने बनाया था, और इसने इसका एक टेस्ट बनाया, ठीक है, जिसमें इसने वो कर्व बताया, बेल शेप आइकन बताई, जिसमें इसने बताया कि 100 वाले जो होते हैं एवरेज होते हैं उसके, और 70 के नीचे वाले डेफिशिएंसी में जाते हैं, और 130 वाले हाई इंटेलिजेंस में गिफ्टेडनेस में जाते हैं। फिर उसकी हमने कैटेगरीज करी थी। तो 70 के नीचे वाली में हमने 4 कैटेगरीज की थी, ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। फाइन। सीवियर, प्रोफाउंड। हमने 130 वाले में भी हमने 2 कैटेगरी करी, एक तो गिफ्टेडनेस वाले बच्चे जिनकी एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और उसके बाद हमने एक करी टैलेंट वाले बच्चे जो थोड़ी सी नैरोर टर्म है, और इनको हम प्रोडिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर गिफ्टेडनेस वाले बच्चों के हमने फीचर्स पढ़े, 5 पॉइंट्स थे ना, आई थिंक 5 गिफ्टेडनेस वाले बच्चे ये होते हैं, वो होते हैं। और फिर वो टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके अंदर 3 क्वालिटीज होती है, जो अभी हमने पढ़ी, हाई क्रिएटिविटी, हाई एबिलिटी एंड हाई कमिटमेंट, ठीक है। ये सारा का सारा हमारा इंटेलिजेंस पे खत्म। तो ये हमने IQ टेस्ट किया था, लेकिन IQ टेस्ट के और भी तरीके होते हैं, कौन कौन से, उनको पढ़ते हैं। वर्बल, नॉन वर्बल, परफॉर्मेंस, ये कैटेगरी है, इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट। और उसके बाद ये जो टेस्ट होने चाहिए, कल्चर फेयर होने चाहिए, कल्चर बायस नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर इंटेलिजेंस को हमने ये भी कंपेयर किया इन डिफरेंट सोसाइटीज। फिर हमने कंपैरिजन किया वेस्टर्न सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी। तो वेस्टर्न में हमने देखा टेक्नोलॉजी वाली सोसाइटीज और लेस टेक्नोलॉजिकल सोसाइटीज, ठीक है। और फिर हमने इंटेलिजेंस को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्रॉपरली स्टडी किया, जिसको आप बुद्धि बोलते हैं, और उसके हमने 4 फीचर्स किए, राइट। कौन कौन से किए हमने? कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये आपके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, इजी। तो यहाँ तक आपका पूरा का पूरा यहाँ पे आपका कंपैरेटिव स्टडी हो गई इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करने की। और बताओ उसके बाद क्या टॉपिक था? इमोशनल। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसका हमने मीनिंग पढ़ा। फिर इसका जैसे IQ समझा था वैसे EQ निकाला, ठीक है, आपके इसमें, राइट। कौन है जिसने इसकी डेफिनेशन दी थी EQ की? EQ की दी थी साल्वे और मेयर, ठीक है। तो इन्होंने डिफाइन किया, और उसके बॉक्स में हमने फीचर्स भी पढ़े EQ के, EQ वाले बंदे कैसे होते हैं। अच्छा, इसके साथ एक बॉक्स में भूल गई, कौन सा वाला? IQ के वो मिसयूज और EQ, और EQ के फीचर्स पढ़े हमने, बॉक्स में भी 2 बॉक्स करे, ठीक है। हाँ। अब इंटेलिजेंस हमारा हो गया खत्म, इसको साइड में रखते हैं। फिर हमने एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट में डिफरेंस पढ़ा विद पैराग्राफ, ठीक है, राइट। एप्टीट्यूड क्या होते हैं और इंटरेस्ट। फिर हमने एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में भी पढ़ा, जिसको आप डैट बोलते हैं, और उसके अंदर आपको चेक करना है, ये हमने किया था। उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है अभी कल्चर एंड इंटेलिजेंस का, ठीक है। तो कल्चर आपको कैसे इंटेलिजेंस टीच करता है, करेक्ट। तो उसमें कल्चर में ही हमने वो कर लिया ना, सॉरी कल्चर ही में तो किया था हमने वेस्टर्न कल्चर एंड, मैं रिपीट दोबारा बोल रही हूँ, ठीक है। और वेगोत्स्की के अकॉर्डिंग उसने ये सर्च किया कल्चर के ऊपर, बेसिकली कल्चर टीचेस अस लॉट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। लास्ट टॉपिक है आपका इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी।
तो उसके ऊपर हम किसके पास आए, हम टर्मन के व्यू पॉइंट के पास आए, ठीक है। फिर हमने उनके रिलेशनशिप देखे, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के रिलेशनशिप, तो वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और हमने उसको एग्जांपल्स के थ्रू भी किया, पॉजिटिव रिलेशनशिप होते हैं। हमने क्रिएटिविटी टेस्ट भी पढ़ा, और क्रिएटिविटी टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट में हमने डिफरेंस भी पढ़ा, ठीक है। और फिर हमने एंड में ये भी पढ़ा क्रिएटिविटी टेस्ट की फीचर्स क्या है, ये ओपन एंडेड होता है, इसका कोई एक आंसर नहीं होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, आईक्यू में कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। और हमने क्रिएटिव टेस्ट किन किन लोगों ने डेवलप करे हैं हमने वो बताया, ठीक है। और खाली पूछा था व्हाट इज क्रिएटिविटी, तो उसमें कितना डालोगे, तो क्रिएटिविटी पहले हमने उसको इन जनरल एग्जांपल्स के साथ बताएंगे ये क्रिएटिविटी होती है। और क्रिएटिविटी फिर हमने एक पॉइंट पढ़ता है एनवायरनमेंट डिपेंडेंट होती है और नेचर डिपेंडेंट भी होती है, कुछ पेरेंट जो ऑलरेडी क्रिएटिव होते हैं तो उनके बच्चे भी क्रिएटिव होते हैं, फिर हमने वो भी पढ़ा था, ठीक है। तो इन जनरल क्रिएटिविटी पे क्वेश्चन आएगा तो हमारे पॉइंट्स अलग है, और रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस आएगा तो हमारी 5 हमने कल किए थे, 5-6 कैटेगरीज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर जो कि बहुत बड़ा है, 10 नंबर का है, 10 ही लेके चलो उसको, 9 और 10 में कुछ फर्क नहीं होता है, तो 10 मार्क्स का ये चैप्टर हमने इसके अंदर कवर किया, ठीक है। तो अभी इसमें कोई इश्यू हो तो बताओ, क्योंकि मंडे को फिर अब मैं इसका क्या नाम है लूंगी, टेस्ट लूंगी पूरा 40 मार्क्स, ठीक है। और टाइम पे शुरू कर दूंगी मैं 4 बजे। और अभी हम 1 तारीख का फिर अभी कुछ फाइनल नहीं कर रहे हैं, क्लास का ऑनलाइन ही रखते हैं, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, अभी गाइडलाइंस आने दो। आपके पेरेंट्स का क्या व्यू पॉइंट है वो भी मुझे थोड़ा बताते रहना, क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि जब तक मुझे लग रहा है स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक इंस्टीट्यूट्स नहीं खुलेंगे। मैम अभी जब से सोसाइटी में आया तो ये लोग मना कर रहे हैं, पहले मैं हाँ बोल भी रही थी कि चले जाओ, अभी तो बहुत ज्यादा मतलब बड़े पापा लोग भी कहीं आने जाने नहीं दे रहे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तक जैसे चल रहा है चलने देते हैं। आई थिंक हमारा अब जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ, अभी ये एक लेसन खत्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है इस तरीके से पढ़ने में, सब क्लियर था, ठीक है। कंपैरेटिवली मतलब बेटर था जो स्कूल में चल रहा है, स्कूल में तो 40-40 बच्चे पढ़ते हैं, पता नहीं वो क्या पढ़ते हैं, मेरे को सब मेरी समझ से बाहर है, ठीक है। तो अब मैं फुल चैप्टर की अभी वर्कशीट भेज दूँ, फुल चैप्टर की वीडियो ऑन द स्पॉट है ना, तो उसमें क्या वीडियो कह रहे हो, अभी समझ नहीं आया, रिपीट करो। आप वीडियो ऑन द स्पॉट है ना, तो अटेंशन रहती है, आप अगर वीडियो ऑन होती रहती है ना तो अटेंशन रहता है, आई कांटेक्ट रहता है, वीडियो नहीं चलती तो साथ में और आप भी चल रहे होते हैं। अब ये तो बच्चे, अब तुम 12th क्लास में हो, अब तुम 12th क्लास में हो, अगर ये चीज तुमको ही कंट्रोल नहीं करोगे तो कौन करेगा, पेरेंट्स भी नहीं बैठ सकते, मैं भी नहीं, मैं भी तो कई बार बोलती हूँ वीडियो ऑन रखो, लेकिन बच्चे नहीं करते हैं, तो मैं इसमें मैं कितना एफर्ट डालूं, पढ़ाई है, कोई भी चीज टू वे होती है, टीचर का एफर्ट नहीं होता, आपको पढ़ना है तो फिर आपको पढ़ना है, आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। मैं कह रही हूँ वीडियो ऑन करो तो आप पढ़ाई करो, देखो समझो, क्योंकि मैं भी आप लोगों को चेक करती रहती हूँ ना, तो अभी तो जो माहौल है उसमें थोड़ा सा तो और ऐसे ही चलना पड़ेगा, उसके बाद तो फिजिकल में आएंगे, तो फिर अभी मैं आपको इस पूरे लेसन की वर्कशीट भेज रही हूँ, अभी भेज रही हूँ, उसको अच्छे से करना, क्योंकि टेस्ट में उसी में से, ओके। चलो फिर आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं, 40 मिनट्स की क्लास रही है आज हमारी, ओके बाय। आई एम वेरी हैप्पी, ऑल द बेस्ट अदिति, वेरी हैप्पी छवि फॉर यू आल्सो, यू आर माय 100 वाले बच्चे, पता है ना तुम्हें, मेरे को भी तो रिजल्ट लाना है। चलो बाय, टेक केयर, हाँ, ओके बाय।